یا نہیں, یہ تو آنے والے ایپیسوڈس مزید انٹرسٹنگ رہے گا, کیونکہ اب باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ترس رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ بے قصور ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرے گا ماموں, کس طریقے سے وہ بچا پائے گا راہم کو, کس طریقے سے سب کچھ جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے شہروز بہت ہی چالاکی کے ساتھ سارے الزامات ڈال دیتا ہے راہم کے اوپر, اور راہم کے خلاف سارے ثبوت ہو رہے ہوتے ہیں. راہم کو اپنی صفائی میں دینے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہوتا. راہم چاہتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے, کچھ بولے, کچھ سنے, لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. راہم مجبور ہوتا ہے, راہم لاچار ہوتا ہے, راہم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ آخر کرے تو کیا کرے. اسی لیے وہ چیخ چیخ کے سب کو کہہ رہا ہوتا ہے. اپنے ماموں کو بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اچھے لائر نہیں ہیں, آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا, آپ صرف اپنی بہن کا ساتھ دے رہے ہیں. ویورز, یہاں ماموں بھی مجبور ہوتا ہے, ماموں بھی خاموش ہوتا ہے, کچھ نہیں کہتا, کیونکہ اس کی بہن کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بانجے کا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ماموں ہی راہم کا ساتھ دے گا. کس طریقے سے راہم پہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے, سارا الزام اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہاں ایمن بھی خاموش ہوتی ہے, وہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر ایمن کچھ کیوں نہیں کہہ رہی. وہ اس سے بھی جواب طلبی کرتا ہے, لیکن وہاں سے بھی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا اور اس کی خوب بےعزتی ہوتی ہے. تو واپس آتا ہے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے لڑتا جھگڑتا ہے. اس کا باپ بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے, کیا ہو گیا ہے راہم کو. راہم اپنے آپ سے بالکل باہر ہو چکا ہے. راہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ چاہ کیا رہا ہے. ویورز, آنے والے ایپیسوڈ سے مزید انٹرسٹنگ ضرور رہیں گے کہ کیا شہروز اپنے آپ کو بچا پائے گا, کب تک الزام کی بوچھاڑ جو ہے وہ راہم پہ کرتا رہے گا. کبھی نہ کبھی تو اس کا وقت آئے گا, کبھی نہ کبھی تو وہ پھنسے گا ضرور, کیونکہ اس کی ماں اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط ہے. اور اس کے دوست ہی اس کا بھانڈا پھوڑیں گے جو وہاں پہ موجود ہے, جن کو وہ لالچ دے کے باہر ملک لے کے جا رہا ہے. اس طریقے سے سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے, پورا ملبہ راہم پہ. راہم بدک رہا ہوتا ہے, راہم جو ہے وہ مکمل طور پہ غصے میں ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے. اس لیے وہ اپنے گھر جاتا ہے. اس کا باپ کہتا ہے تم اور کتنا میری نظروں سے نیچے گرو گے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتی ہیں, ان کے پاس تو سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, نام ہے, مرتبہ ہے, سب کچھ تو ہے, تو یہ اپنے بیٹے کا الزام میرے سر پہ کیوں ڈالنا چاہتی ہیں, یہ کیا چاہتی ہیں. جس پہ اس کا باپ بول پڑتا ہے, وہ کہتا ہے کہ راہم بہت غصے میں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں کل پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, وہاں میں ساری بات کلیئر کر دوں گا. یہ بات سنتے ہی سارے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں, اور یہ بات شہروز کو ہی پتہ ہے کہ راہم خاموش بیٹھنے والا انسان نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں گے شہروز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں راہم پریس کانفرنس کرنے ہی لگتا ہے کہ پولیس آ جاتی ہے, اور پولیس راہم کو ہی لے کے جائے گی. راہم کے اس طریقے سے سب کچھ ثابت ہونے کے بعد اس کی منگیتر کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. اپنے باپ کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ راہم نے مجھے دھوکہ دیا ہے, اس نے میرے ساتھ بہت غلط بیانی کی ہے. اس کا باپ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ویورز وہ ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے. یہاں پہ راہم کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں. راہم کا نام ایمن لے لے گی کیونکہ ایمن کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے. وہ نہیں چاہتی راہم کو پھنسانا. وہ کہتی ہے اس کی ماں سے کہ آپ سب راہم کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں, آپ کیوں ان کو برباد کرنا چاہتی ہیں. جس پہ وہ کہتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو, تم نے جتنا کہا جا رہا ہے تم خالی اتنا ہی کرو. ویورز, ایمن آگے جا کر ضرور سچائی کا ساتھ دے گی اور ضرور راہم کو سرخرو کرے گی, اور پھر راہم جو ہے وہ ایمن سے ہی شادی کرے گا. آنے والے ایپیسوڈز میں کس طریقے سے سب کے منہ پہ تماچا ہوگا جب راہم جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہوگا. فی الحال شہروز ہواؤں میں اڑ رہا ہے. اب دیکھنا یہ کب تک یہ آزادی کی زندگی جیے گا. کس طریقے سے راہم پہ سارے الزامات کا بوجھ آ جاتا ہے. یہاں شہروز بڑے مزے سے چھٹیاں منانے چلا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں راہم ہی سرخرو ہوگا اور شہروز ہی اینڈ میں آ کے اس طرح سے اس بازی پلٹے گی اور کیا کچھ ہوگا. فی الحال ایمن خاموش ہے کیونکہ اس کو دھمکایا جا رہا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس نے کچھ بھی منہ کھولا اس کے گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے. ایمن مجبور ہے, ایمن کو سمجھ نہیں آ رہا. یہاں اس کی ماں بھی اس کو دھمکاتی ہے کہ تم راہم کا نام لو. جا کے پولیس اسٹیشن جاتی ہے. پولیس اسٹیشن میں راہم اس کے بارے میں پوچھ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس بھائی نے آپ کو مارنے کی کوشش کی, جس پہ اس کا سر چکرا دیتا ہے. وہ بھی فی الحال کیا راہم کا نام لے لے کہ اگلی قسط میں کیا راہم کو سزا ہو جائے گی, یہ دیکھنا بہت ضروری رہے گا. راہم جو ہے وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ ایمن سے شادی کرنے کے علاوہ. دکھایا جا رہا ہے ایمن کے سر کے اوپر بہت سا بوجھ جمع ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایمن کو بہت پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے علی نواز کی وائف کی طرف سے. یہاں وہ اس کو کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف راہم کا نام لوگی اور راہم کے علاوہ کسی کا نام نہیں لوگی. وہ بہت پریشان ہوتی ہے.
اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، وہ کس طرف جائے۔ اس کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں راحم کے لیے۔ راحم اپنے ماموں سے بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، میرے ساتھ اپنے بھانجے کو، اپنی بہن کو بچانے کی بھرپور کوشش ہے آپ کی، اور غلط طریقے سے آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہوگا۔ سب چیزیں راحم کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹلی طور پہ، اور اس کی سوتیلی ماں چاہتی ہے کہ وہ مزید لیٹ ڈاؤن ہو جائے۔ کیا وہ ایسا کر پانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا سب کچھ راحم کے خلاف جا کے راحم ہی مجرم ثابت ہوگا؟ یہ سب کچھ دیکھنا بہت ضروری رہے گا۔ اب طریقے سے راحم کے لیے بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، راحم پریشان ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سب جگہ راحم کے خلاف مہم شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ راحم پریشان ہوتا ہے، اپنے ماموں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ نے اچھا ماموں سے دور اچھا لوئر ہونے کا فرض بھی صحیح طریقے سے بخوبی طور پہ انجام نہیں دیا۔ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بھائی اور اپنی بہن کے بھانجے کو سنبھال رہے ہیں، آپ کو میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ جس پہ وہ کہتا ہے میں کیا کروں راحم، میں مجبور ہوں۔ یہاں راحم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، ایمن کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے راحم کی ماں کی طرف سے کہ وہ بیان دے راحم کو کہ ہاں اس نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ یہاں ایمن کے اوپر کافی بوجھ آ چکا ہوتا ہے، اس کا باپ اس کو لے کے پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں جا کے پولیس والا راحم اس سے پوچھتا ہے ایمن سے کہ آخر 2 بیٹے ہیں علی نواز کے، تو آپ کے ساتھ کس نے اس طرح سے کرنے کی کوشش کی؟ جس پہ وہ سٹپٹا جاتی ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل باہر چلی جاتی ہے۔ کیا وہ نام لے گی تو صرف اور صرف راحم کا؟ یہاں اس کی ماں ثبوت مٹا رہی ہوتی ہے، راحم کے خلاف سارے ثبوت کر رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر سے ملتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا ایمن کی کیا اب جو ہے وہ ریپوٹیشن ہے، کس طریقے سے ایمن اپنے آپ کو صحیح کر رہی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایمن 80% ٹھیک ہو چکی ہے، 20% ٹھیک ہونا باقی اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کوشش نہیں کرنی، آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ 20% بھی ٹھیک نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر سن کے حیران ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ خرید لیتی ہے۔ یہاں شہروز اپنے دوستوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو صاف منع کر دینا اور صرف راحم کا نام ہی لینا، راحم کا نام ہی سامنے آنا چاہیے۔ یہ راحم سب چیزوں کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی چیزیں راحم سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو سارے ثبوت راحم کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک طریقے سے راحم کو پھنسایا چلا جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سارے ثبوتوں کو راحم کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ راحم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، سب شہروز نے کیا ہوتا ہے، لیکن راحم کو سارے ثبوت راحم کے خلاف کر دیتے ہیں تاکہ راحم کچھ بھی اپنے آپ کو کلیئر نہ کر سکے۔ یہاں اس کی ماں بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور اس کا بھائی بھی۔ یہاں اس کے باپ کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ راحم نے کیا، کیونکہ ایمن بھی اس بات کی گواہی دے دے گی، کیونکہ ایمن کو ٹارچر کیا جا رہا ہوگا اور اسے کہا جا رہا ہوگا تم نے اگر ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اسی لیے سب کچھ اس کے خلاف جا رہے ہوں گے، ثبوت بھی سب کچھ۔ اب راحم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، وہ خاموش رہ کے سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو پولیس بھی لے جاتی ہے۔ یہاں جب ایمن اس کے خلاف گواہی دیتی ہے تو اس کو اور غصہ آتا ہے، ایمن اس کو بتانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ مجھے دھمکایا جا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ راحم اپنے آپ کو کس طریقے سے صحیح ثابت کر پائے گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسم آپ لوگ دیکھیں گے۔ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا راحم اپنی صفائی کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ماموں سے بھی کہتا ہے، لیکن اس کا ماموں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور وہ یہ بات بخوبی سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اپنے ماموں سے بھی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے مجھے بچا لیا تو اس کے لیے آپ کو اپنے بھانجے کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں ماموں ہی ہے جو صحیح بندہ ہے اور وہ صحیح چیز کا ساتھ دے گا اور وہ راحم کو بچا کے لے کر آئے گا۔ ویورز، آگے جا کے دیکھیں گے شہروز جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، مسلسل کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ماموں کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس کا باپ بیمار پڑ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی بہن کو بھی سناتا ہے اچھی خاصی۔ ویورز، کیا ان کی ذہنوں پہ اثر کرے گی یہ چیز؟ کیا وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے یا نہیں؟ یہ تو آنے والے ایپیسوڈز مزید انٹرسٹنگ رہے، کیونکہ اب باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ترس رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ بے قصور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرے گا ماموں، کس طریقے سے وہ بچا پائے گا راحم کو، کس طریقے سے سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، راحم کا اچھا خاصا بزنس تباہ ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اس کا بھائی شہروز کو بچانے کے لیے اس کی سوتیلی ماں اسی کو بلی کا بکرا بنا دیتی ہے اور یہاں وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ آپ کو اگر آپ مجھے بچا لیں گے تو آپ کو اپنے بھانجے کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کو اس کی صفائی سچائی سے
सबके सामने रखनी पड़ेगी। यहाँ उसका मामू भी बहुत गुस्से में होता है अपनी बहन से कि उसने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब वो मज़ीद ज़िंदगियाँ बर्बाद करने जा रही है। वो अपनी बहन से बहुत गुस्सा होता है, बहुत बातें सुनाता है, लेकिन उसकी बहन चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसी की गलती है, उसी को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ आप देखेंगे राहिम के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। वो जेल में होता है और वो बहुत परेशान होता है। एमन भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एमन को भी धमकाया डराया जा रहा होता है। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से अपने आप को बचा पाएगी। ड्रामा जो है मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। या एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है और वो एमन को धमकियाँ भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने सारे से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ, कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामों से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। अब देखना ये है कि क्या राहिम बच पाएगा या नहीं। राहिम पूरी तरीके से फंस जाता है, उसकी सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफरत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुँचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है, इतने में आप देखेंगे किस तरीके से एमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पे रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या राहिम बाहर आ सकेगा या नहीं। किस तरीके से सब कुछ जो है वो उलट हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ाम डाल देता है राहिम के ऊपर और राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है, राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीख चीख के सबको कह रहा होता है, अपने मामों को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में मामू ही राहिम का साथ देगा। किस तरीके से राहिम पे सारा मलबा डाल दिया जाता है, सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जाता है। यहाँ एमन भी खामोश होती है, वो इस बात पर परेशान होता है कि आखिर एमन कुछ क्यों नहीं कह रही। वो उससे भी जवाब तलबी करता है लेकिन वहाँ से भी खातिर खा जवाब नहीं मिलता और उसकी खूब बेइज्जती होती है। तो वापस आता है अपने बाप से, अपनी माँ से लड़ता झगड़ता है। उसका बाप भी परेशान होता है कि आखिर ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या हो गया है राहिम को। राहिम अपने आप से बिल्कुल बाहर हो चुका है, राहिम को समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो चाह क्या रहा है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड से मज़ीद इंटरेस्टिंग ज़रूर रहेंगे कि क्या शहरोज़ अपने आप को बचा पाएगा, कब तक इल्ज़ाम की बौछार जो है वो राहिम पे करता रहेगा। कभी ना कभी तो उसका वक्त आएगा, कभी ना कभी तो वो फंसेगा ज़रूर, क्योंकि उसकी माँ और वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और उसके दोस्त ही उसका भांडा फोड़ेंगे जो वहाँ पे मौजूद है, जिनको वो लालच दे के बाहर मुल्क पे लेके जा रहा है। इस तरीके से सब कुछ डाल दिया जाता है, पूरा मलबा राहिम बेधक रहा होता है। राहिम जो है वो मुकम्मल तौर पर गुस्से में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपने घर जाता है। उसका बाप कहता है तुम और कितना मेरी नज़रों से नीचे गिरोगे। तो वो कहता है कि आप पहले इनसे पूछेंगे ये क्या चाहती है, इनके पास तो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नाम है, मर्तबा है, सब कुछ तो है, तो ये अपने बेटे का इल्ज़ाम मेरे सर पे क्यों डालना चाहती हैं, ये क्या चाहती हैं। जिस पे उसका बाप बोल पड़ता है, वो कहता है कि राहिम
राहिम बहुत गुस्से में होता है। वो बताता है कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, वहाँ मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। ये बात सुनते ही सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं और ये बात शहरोज़ को ही पता है कि राहिम खामोश बैठने वाला इंसान नहीं है। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ जो है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। यहाँ राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही लगता है कि पुलिस आ जाती है और पुलिस राहिम को ही लेके जाएगी। राहिम के इस तरीके से सब कुछ साबित होने के बाद उसकी मंगेतर का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अपने बाप के सामने जाती है और कहती है कि राहिम ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ बहुत गलत बयानी की है। उसका बाप भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन व्यूवर्स वो टूट जाती है, बिखर जाती है। यहाँ पे राहिम के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े होते हैं। राहिम का नाम एमन ले लेगी क्योंकि एमन को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। वो नहीं चाहती राहिम को फंसाना। वो कहती है उसकी माँ से कि आप सर राहिम के पीछे क्यों पड़ गई हैं, आप क्यों उनको बर्बाद करना चाहती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुमने जितना कहा जा रहा है तुम खाली उतना ही करो। व्यूअर्स एमन आगे जाकर ज़रूर सच्चाई का साथ देगी और ज़रूर राहिम को सुरखरू करेगी और फिर राहिम जो है वो एमन से ही शादी करेगा। आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से सबके मुंह पे तमाचा होगा जब राहिम जो है वो बेगुनाह साबित होगा। फिलहाल शहरोज़ हवाओं में उड़ रहा है, अब देखना ये कब तक ये आज़ादी की ज़िंदगी जिएगा। किस तरीके से राहिम पे सारे इल्ज़ामात का बोझ आ जाता है। यहाँ शहरोज़ बड़े मज़े से छुट्टियां मनाने चला जाता है, लेकिन आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में राहिम ही सुरखरू होगा और शहरोज़ ही एंड में आके किस तरह से उस बाजी पलटेगी और क्या कुछ होगा। फिलहाल एमन खामोश है क्योंकि उसको धमकाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि अगर उसने कुछ भी मुँह खोला उसके घर वालों को नुकसान हो सकता है। एमन मजबूर है, एमन को समझ नहीं आ रहा। यहाँ उसकी माँ भी उसको धमकाती है कि तुम राहिम का नाम लो जाके। पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में राहिम के बारे में पूछ जाता है कि इन दोनों में से किस भाई ने आपको मारने की कोशिश की, जिस पे उसका सर चकरा जाता है। वो भी फिलहाल क्या राहिम का नाम ले लेगी अगली किस्त में, क्या राहिम को सज़ा हो जाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। राहिम जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि एमन से शादी करने के अलावा। दिखाया जा रहा है एमन के सर के ऊपर बहुत सा बोझ जमा होता है। यहाँ आप देखेंगे कि एमन को बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा होता है अली नवाज़ की वाइफ की तरफ से। यहाँ वो उसको कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ राहिम का नाम लोगी और राहिम के अलावा किसी का नाम नहीं लोगी। वो बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, वो किस तरफ जाए। उसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं राहिम के लिए। राहिम अपने मामू से भी यही कहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे साथ अपने भांजे को, अपनी बहन को बचाने की भरपूर कोशिश है आपकी और गलत तरीके से आप गलत काम कर रहे हैं, इसका अंजाम भी बहुत ही बुरा होगा। सब चीज़ें राहिम के ख़िलाफ़ जा रही होती हैं। वो डिस्टर्ब होता है मेंटली तौर पर और उसकी सौतेली माँ चाहती है कि वो मज़ीद लेट डाउन हो जाए। क्या वो ऐसा कर पाने में कामयाब हो सकेगी? क्या सब कुछ राहिम के ख़िलाफ़ जाके राहिम ही मुझे साबित होगा? ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब तरीके से राहिम के लिए बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। राहिम परेशान होता है क्योंकि इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सब जगह राहिम के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो चुकी होती है। राहिम परेशान होता है, अपने मामू के पास आता है और उनसे कहता है कि आपने अच्छा मामू से दूर अच्छा लॉयर होने का फ़र्ज़ भी सही तरीके से बखूबी तौर पे अंजाम नहीं दिया। आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई और अपनी बहन के भांजे को संभाल रहे हैं। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। जिस पे वो कहता है मैं क्या करूं राहिम, मैं मजबूर हूं। यहाँ राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एमन को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा होता है राहिम की माँ की तरफ से कि वो बयान दे राहिम को कि हाँ उसने ही सब कुछ किया है। यहाँ एमन के ऊपर काफ़ी बोझ आ चुका होता है। उसका बाप उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाके पुलिस वाला राहिम उससे पूछता है एमन से कि आखिर 2 बेटे हैं अली नवाज़ के, तो आपके साथ किसने इस तरह से करने की कोशिश की? इस पर वो सटपटा जाती है और वो अपने होशो हवास से बिल्कुल बाहर चली जाती है। क्या वो नाम लेगी तो सिर्फ और सिर्फ राहिम का? यहाँ उसकी माँ सबूत मिटा रही होती है, राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत कर रही होती है। डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या एमन की क्या अब जो है वो रेपुटेशन है, किस तरीके से एमन अपने आप को सही कर रही है। वो बताता है कि एमन 80% ठीक हो चुकी है, 20% ठीक होना बाकी और हम कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है कोशिश नहीं करनी, आप लोगों को कोशिश करनी है कि वो 20% भी ठीक ना हो। ये डॉक्टर सुन के हैरान हो जाता है, वो सब कुछ ख़रीद लेती है। यहाँ शहरोज़ अपने दोस्तों को भी बता देता है कि अगर कोई तुमसे पूछने के लिए आए तो उसको साफ मना कर देना और सिर्फ राहिम का नाम ही लेना, राहिम का नाम ही सामने आना चाहिए। ये राहिम सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हो रही होती है उसकी चीज़ें। राहिम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता भी है तो सारे सबूत राहिम के ख़िलाफ़ होते हैं। एक तरीके से राहिम को फंसाया चला जा रहे होते हैं। यहाँ सारे सबूतों को राहिम के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं जबकि राहिम की कोई गलती नहीं होती, सब शहरोज़ ने किया होता है। लेकिन राहिम को सारे सबूत राहिम के ख़िलाफ़ कर देते हैं ताकि राहिम कुछ भी अपने आप को क्लियर ना कर सके। यहाँ उसकी माँ भी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है और उसका भाई भी।
यहाँ उसके बाप को भी यकीन हो जाता है कि सब कुछ राहिम ने किया, क्योंकि एमन भी इस बात की गवाही दे देगी, क्योंकि एमन को टॉर्चर किया जा रहा होगा और उसे कहा जा रहा होगा तुमने अगर ऐसा ना किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए सब कुछ उसके खिलाफ जा रहे होंगे, सबूत भी, सब कुछ। अब राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो खामोश रह के सारा तमाशा देख रहा होता है। उसको पुलिस भी ले जाती है। यहाँ जब एमन उसके खिलाफ गवाही देती है तो उसको और गुस्सा आता है। एमन उसको बताने की भी कोशिश करती है कि मुझे धमकाया जा रहा था। अब देखना ये है कि राहिम अपने आप को किस तरीके से सही साबित कर पाएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा राहिम अपनी सफाई के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है, अपने मामू से भी कहता है, लेकिन उसका मामू उसका साथ नहीं दे रहा होता और वो ये बात बखूबी समझ चुका होता है। अपने मामू से भी कहता है कि आप मेरे लिए कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर आपने मुझे बचा लिया तो उसके लिए आपको अपने भांजे को सबके सामने बेनकाब करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में मामू ही है जो सही बंदा है और वो सही चीज़ का साथ देगा और वो राहिम को बचा के लेकर आएगा। व्यूअर्स, आगे जाके देखेंगे शहरोज़ जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, मुसलसल कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता चला आ रहा है जिसकी वजह से उसके मामू को शर्मिंदगी होती है और उसका बाप बीमार पड़ रहा है। वो सब कुछ देख रहा है और वो अपनी बहन को भी सुनाता है अच्छी खासी। व्यूअर्स, क्या इनकी जहनों पे असर करेगी ये चीज़? क्या वो अपनी गलती को तस्लीम करेंगे या नहीं? ये तो आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब बाप जो है वो अपने बेटे के लिए तरस रहा है और बेटा जो है वो बेकसूर होता है। अब देखना ही है कि क्या करेगा मामू, किस तरीके से वो बचा पाएगा राहिम को। अब किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। राहिम का अच्छा खासा बिजनेस तबाह होने जा रहा होता है। यहाँ उसका भाई शहरोज़ को बचाने के लिए उसकी सौतेली माँ उसी को बलि का बकरा बना देती है और यहाँ वो अपने मामू से कहता है कि आपको, अगर आप मुझे बचा लेंगे तो आपको अपने भांजे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको उसकी सफाई सच्चाई सबके सामने रखनी पड़ेगी। यहाँ उसका मामू भी बहुत गुस्से में होता है अपनी बहन से कि उसने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब वो मज़ीद ज़िंदगियाँ बर्बाद करने जा रही है। वो अपनी बहन से बहुत गुस्सा होता है, बहुत बातें सुनाता है, लेकिन उसकी बहन चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसी की गलती है, उसी को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ आप देखेंगे राहिम के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। वो जेल में होता है और वो बहुत परेशान होता है। एमन भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एमन को भी धमकाया डराया जा रहा होता है। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से अपने आप को बचा पाएगी। ड्रामा जो है मज़ीद जो इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। या एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है और वो एमन को धमकियाँ भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है और वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने सारे से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ, कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामू से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। अब देखना ये है कि क्या राहिम बच पाएगा या नहीं। राहिम पूरी तरीके से फंस जाता है, उसकी सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुँचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है। इतने में आप देखेंगे किस तरीके से एमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पे रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है क्या राहिम बाहर आ सकेगा या नहीं। किस तरीके से सब कुछ जो है वो उलट हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ामात डाल देता है राहिम के ऊपर और राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है, राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे।
इसीलिए वो चीख चीख के सबको कह रहा होता है, अपने मामू को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में मामू ही राहिम का साथ देगा। किस तरीके से राहिम पे सारा मलबा डाल दिया जाता है, सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जाता है। यहाँ एमन भी खामोश होती है, वो इस बात पे परेशान होता है कि आखिर एमन कुछ क्यों नहीं कह रही। वो उससे भी जवाब तलबी करता है लेकिन माँ से भी खातिर खा जवाब नहीं मिलता और उसकी खूब बेइज्जती होती है। तो वापस आता है अपने बाप से, अपनी माँ से लड़ता झगड़ता है। उसका बाप भी परेशान होता है कि आखिर ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या हो गया है राहिम को। राहिम अपने आप से बिल्कुल बाहर हो चुका है, राहिम को समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो चाह क्या रहा है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड से मज़ीद इंटरेस्टिंग ज़रूर रहेंगे कि क्या शहरोज़ अपने आप को बचा पाएगा, कब तक इल्ज़ाम की बौछार जो है वो राहिम पे करता रहेगा। कभी ना कभी तो उसका वक्त आएगा, कभी ना कभी तो वो फंसेगा ज़रूर, क्योंकि उसकी माँ और वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और उसके दोस्त ही उसका भांडा फोड़ेंगे जो वहाँ पे मौजूद है, जिनको वो लालच दे के बाहर मुल्क पे लेके जा रहा है। इस तरीके से सब कुछ डाल दिया जाता है, पूरा मलबा राहिम पे। राहिम बिदक रहा होता है, राहिम जो है वो मुकम्मल तौर पे गुस्से में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपने घर जाता है। उसका बाप कहता है तुम और कितना मेरी नज़रों से नीचे गिरोगे। तो वो कहता है कि आप पहले इनसे पूछेंगे ये क्या चाहती है। इनके पास तो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नाम है, मर्तबा है, सब कुछ तो है। तो ये अपने बेटे का इल्ज़ाम मेरे सर पे क्यों डालना चाहती हैं, ये क्या चाहती हैं। जिस पे उसका बाप बोल पड़ता है। वो कहता है कि राहिम बहुत गुस्से में होता है। वो बताता है कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, वहाँ मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। ये बात सुनते ही सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं और ये बात शहरोज़ को ही पता है कि राहिम खामोश बैठने वाला इंसान नहीं है। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ जो है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। यहाँ राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही लगता है कि पुलिस आ जाती है और पुलिस राहिम को ही लेके जाएगी। राहिम के इस तरीके से सब कुछ साबित होने के बाद उसकी मंगेतर का रो के बुरा हाल हो जाता है। अपने बाप के सामने जाती है और कहती है कि राहिम ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ बहुत गलत बयानी की है। उसका बाप भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन व्यूवर्स वो टूट जाती है, बिखर जाती है। यहाँ पे राहिम के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े होते हैं। राहिम का नाम एमन ले लेगी क्योंकि एमन को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। वो नहीं चाहती राहिम को फंसाना। वो कहती है उसकी माँ से कि आप सर राहिम के पीछे क्यों पड़ गई हैं, आप क्यों उनको बर्बाद करना चाहती हैं। जिसे वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुमने जितना कहा जा रहा है तुम खाली उतना ही करो। व्यूअर्स, एमन आगे जाकर ज़रूर सच्चाई का साथ देगी और ज़रूर राहिम को सुरखरू करेगी और फिर राहिम जो है वो एमन से ही शादी करेगा। आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से सबके मुंह पे तमाचा होगा जब राहिम जो है वो बेगुनाह साबित होगा। फिलहाल शहरोज़ हवाओं में उड़ रहा है। अब देखना ये कब तक ये आज़ादी की ज़िंदगी जिएगा। किस तरीके से राहिम पे सारे इल्ज़ामात का बोझ आ जाता है। यहाँ शहरोज़ बड़े मज़े से छुट्टियाँ मनाने चला जाता है लेकिन आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में राहिम ही सुरखरू होगा और शहरोज़ ही एंड में आके इस तरह से उस बाजी पलटेगी और क्या कुछ होगा। फिलहाल एमन खामोश है क्योंकि उसको धमकाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि अगर उसने कुछ भी मुँह खोला उसके घर वालों को नुकसान हो सकता है। एमन मजबूर है, एमन को समझ नहीं आ रहा। यहाँ उसकी माँ भी उसको धमकाती है कि तुम राहिम का नाम लो। जाके पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में राहिम के बारे में पूछ जाता है कि इन दोनों में से किस भाई ने आपको मारने की कोशिश की, जिस पे उसका सर चकरा जाता है। वो भी फिलहाल क्या राहिम का नाम ले लेगी अगली किस्त में, क्या राहिम को सज़ा हो जाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। राहिम जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि एमन से शादी करने के अलावा। दिखाया जा रहा है एमन के सर के ऊपर बहुत सा बोझ जमा होता है। यहाँ आप देखेंगे कि एमन को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा होता है अली नवाज़ की वाइफ की तरफ से। यहाँ वो उसको कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ राहिम का नाम लोगी और राहिम के अलावा किसी का नाम नहीं लोगी। वो बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, वो किस तरफ जाए। उसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं राहिम के लिए। राहिम अपने मामू से भी यही कहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे साथ अपने भांजे को, अपनी बहन को बचाने की भरपूर कोशिश है आपकी और गलत तरीके से आप गलत काम कर रहे हैं, इसका अंजाम भी बहुत ही बुरा होगा। सब चीज़ें राहिम के ख़िलाफ़ जा रही होती हैं। वो डिस्टर्ब होता है मेंटली तौर पर और उसकी सौतेली माँ चाहती है कि वो मज़ीद लेट डाउन हो जाए। क्या वो ऐसा कर पाने में कामयाब हो सकेगी? क्या सब कुछ राहिम के ख़िलाफ़ जाके राहिम ही मुजरिम साबित होगा? ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस तरीके से राहिम के लिए बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। राहिम परेशान होता है क्योंकि इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सब जगह राहिम के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो चुकी होती है। राहिम परेशान होता है, अपने मामू के पास आता है और उनसे कहता है कि आपने अच्छा मामू से दूर अच्छा लॉयर होने का फ़र्ज़ भी सही तरीके से बखूबी तौर पे अंजाम नहीं दिया। आप
جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بھائی اور اپنی بہن کے بھانجے کو سنبھال رہے ہیں۔ آپ کو میرا کوئی خیال نہیں ہے، جس پہ وہ کہتا ہے میں کیا کروں راحم، میں مجبور ہوں۔ یہاں راحم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ ایمن کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے راحم کی ماں کی طرف سے کہ وہ بیان دے راحم کو کہ ہاں اس نے ہی سب کچھ کیا ہے۔ یہاں ایمن کے اوپر کافی بوجھ آ چکا ہوتا ہے۔ اس کا باپ اس کو لے کے پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں جا کے پولیس والا راحم اس سے پوچھتا ہے ایمن سے کہ آخر 2 بیٹے ہیں علی نواز کے، تو آپ کے ساتھ کس نے اس طرح سے کرنے کی کوشش کی، جس پہ وہ سٹپٹا جاتی ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل باہر چلی جاتی ہے۔ کیا وہ نام لے گی تو صرف اور صرف راحم کا؟ یہاں اس کی ماں ثبوت مٹا رہی ہوتی ہے، راحم کے خلاف سارے ثبوت کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے ملتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا ایمن کی کیا اب جو ہے وہ ریپوٹیشن ہے، کس طریقے سے ایمن اپنے آپ کو صحیح کر رہی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایمن 80% ٹھیک ہو چکی ہے، 20% ٹھیک ہونا باقی اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کوشش نہیں کرنی، آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ 20% بھی ٹھیک نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر سن کے حیران ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ خرید لیتی ہے۔ یہاں شہروز اپنے دوستوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو صاف منع کر دینا اور اسے راحم کا نام ہی لینا، راحم کا نام ہی سامنے آنا چاہیے۔ یہ راحم سب چیزوں کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی چیزیں راحم سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو سارے ثبوت راحم کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک طریقے سے راحم کو پھنسایا چلا جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سارے ثبوتوں کو راحم کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ راحم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، سب شہروز نے کیا ہوتا ہے، لیکن راحم کو سارے ثبوت راحم کے خلاف کر دیتے ہیں تاکہ راحم کچھ بھی اپنے آپ کو کلیئر نہ کر سکے۔ یہاں اس کی ماں بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور اس کا بھائی بھی۔ یہاں اس کے باپ کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ راحم نے کیا، کیونکہ ایمن بھی اس بات کی گواہی دے دے گی، کیونکہ ایمن کو ٹارچر کیا جا رہا ہوگا اور اسے کہا جا رہا ہوگا تم نے اگر ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اسی لیے سب کچھ اس کے خلاف جا رہے ہوں گے، ثبوت بھی سب کچھ۔ اب راحم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، وہ خاموش رہ کے سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو پولیس بھی لے جاتی ہے۔ یہاں جب ایمن اس کے خلاف گواہی دیتی ہے تو اس کو اور غصہ آتا ہے۔ ایمن اس کو بتانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ مجھے دھمکایا جا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ راحم اپنے آپ کو کس طریقے سے صحیح ثابت کر پائے گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسم آپ لوگ دیکھیں گے۔ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا راحم اپنی صفائی کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ماموں سے بھی کہتا ہے، لیکن اس کا ماموں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور وہ یہ بات بخوبی سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اپنے ماموں سے بھی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے مجھے بچا لیا تو اس کے لیے آپ کو اپنے بھانجے کو سب کے سامنے بے نقاب کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں ماموں ہی ہے جو صحیح بندہ ہے اور وہ صحیح چیز کا ساتھ دے گا اور وہ راحم کو بچا کے لے کر آئے گا۔ ویورز، آگے جا کے دیکھیں گے شہروز جو ہے وہ